So, good evening to all. Today, we are going to discuss the solutions of the zoology section of NEET question paper, which was conducted on 5th of May this year across various centers in the country. So, among the zoology section, there were 50 questions, out of which 45 need to be attempted, each question carrying a weightage of 4 marks. And if you make an incorrect guess, it will cost you minus of 1. That is 25% of the actual marking. So, first question, matching question and list A और B को लिस्ट ए और बी को मैच करना है. कॉमन कोल्ड बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बट यहाँ पर वायरल ऑप्शन है. राइनो वायरसेस कॉज कॉमन कोल्ड. हीमोजोइन विच आर फाउंड बाय ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं ये हीमोग्लोबिन का. जो प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग इट्स एसेक्सुअल साइकिल इन आरबीसी, दीज आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. ब्राउन कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं विच व्हेन रिलीज्ड कॉज फीवर. कॉज फीवर. और कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग एसेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम व्हेन इट रिसाइड्स इन आरबीसी. फिर विडाल टेस्ट, it is the diagnostic test of typhoid. Okay. And allergy, possible allergens can be dust or mites. Possible allergen can be dust or mites. So let's take which of the following option matches along with our need. So B2, B1, A3, A3, B1. So this is the correct answer, where A3, common cold, is associated with rhinoviruses. Hemozoin granules are associated with plasmodium. Vidal test is associated with typhoid, and allergy is associated with dust and mites. So now let's move on to the next question. So the flippers of penguins and dolphins are example of. This is a very good question coming from evolution chapter. See, flippers of penguins and dolphins are different structures. Flippers of penguins and dolphins are different structures, yet they perform common function. Different structures, but same function. That is swimming. Different structure, but same function. That is swimming. Both help in swimming. So, what kind of organs which have a different structure or different origin but share a common function known as analogous organs? And analogous organs, since they are coming from different origin, okay, but they are pointing towards a common function, so they are converging. That is why known as convergent evolution. That is why known as convergent evolution. So is there an option named convergent evolution? Yes. So the answer to this question is A, convergent evolution. Let's move on to next question. Given below are the some stages of human evolution, arrange them in correct sequence from past to recent. पहले कौन आया और लेटेस्ट कौन आया? तो पहले आए, सबसे पहले कौन आए थे? हमारे होमो हेबिलिस. सबसे पहले कौन आए थे? होमो हेबिलिस. फिर आए होमो इरेक्टस. फिर आए होमो निएंडरथैलेंस, निएंडरथल मैन जिसको बोलते हैं, और लास्ट इज होमो सेपियंस. तो इट इज डी ए, इट इज ए डी सी बी. इट इज ए डी सी बी. ओके, गॉट इट. इनके बारे में थोड़ा अगर और जानना है, होमो हेबिलिस ये 2 मिलियन साल पहले आए थे. इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी. 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर की क्रेनियल कैपेसिटी थी. दे प्रोबेबली एट फ्रूट एंड नॉट मीट. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी. फिर होमो इरेक्टस आए, दे प्रोबेबली एट मीट. इनका ब्रेन साइज भी थोड़ा बड़ा हुआ.
900 सीसी तक ब्रेन साइज गया, और क्या कहते हैं 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। फिर होमो निएंडरथैलिस, इनकी 1400 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी गई, इन्होंने बॉडी हाइट्स यूज करना स्टार्ट करा, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं 40,000 ईयर्स पहले, और उसके बाद द लेटेस्ट होमोसेपियंस जो हम हैं, जिनकी डिफरेंट रेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस कॉन्टिनेंट्स। So the answer is A, D, C, B. First came Homo habilis, then Homo erectus, then Homo neanderthalis, and then Homo sapiens. Let's moving on to the next question. So this question again comes from evolution. I have always emphasized on this point that evolution in the NEET zoology preparation is a very important chapter. It makes up to almost 3 to 4 questions every year in the paper. So if you are focusing, if you are an aspirant who is preparing for next year NEET, in the zoology section, give importance to this chapter because this is very important chapter. So which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? What is Hardy-Weinberg equilibrium? Hardy-Weinberg equilibrium talks about the gene pool among various along with its frequencies. The equation is p square plus q square plus 2pq is equal to 1, where p square is the gene frequency of a particular allele, q square of its different allele, and in the heterozygous form. So gene migration, of course, if the genes migrate, the gene pool will be affected, Hardy-Weinberg equilibrium will be affected. So this cannot be the case. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यस रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस आएंगी, वो भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस अगर ड्रिफ्ट हो रहा है जीन्स का वो भी अफेक्ट करेगा, बट कांस्टेंट जीन पूल will not affect Hardy-Weinberg equilibrium. Constant gene pool will not affect Hardy-Weinberg equilibrium. Moving on to next question. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई के लिए कौन से फैक्टर फेवरेबल है? बनाना है, O2HB कॉम्प्लेक्स बनाना है। बनाने के लिए हमने एक ग्राफ पढ़ा हुआ है इससे पहले, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन और PO2 के बीच में, ये ग्राफ हम पढ़ते हैं विच इज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सिग्मोइड कर्व, विच इज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सिग्मोइड कर्व। हम पढ़ते हैं कि जो सिग्मोइड कर्व है ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इंडिकेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इंडिकेट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। सो हमें यहां पर बाइंडिंग की बात करनी है और कौन से फेवरेबल है। तो बाइंडिंग के लिए फेवरेबल होते हैं हाई PO2, लो PCO2, हाई pH, ओके हाई pH, और हाई pH मतलब लो H+ कॉन्सेंट्रेशन, okay, these are the factors which are responsible for the binding of oxygen to hemoglobin. So the answer will be this one, okay, high PO2 and lesser H+ concentration. Got it? Because less low PCO2 promote करेगा, but high H+ will create low pH, which will cause acidic conditions and will result in the release of oxygen from hemoglobin. Okay. लो PCO2 ठीक है ये करेगा फेवरेबल, बट हाई टेम्परेचर वोंट सपोर्ट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। हाई PO2 will promote, but high PCO2 will not promote. So the correct answer being high PO2 and lesser H+ concentration. Okay. Moving on to next question. Which of the following is not
a natural or traditional contraceptive method? See, contraceptive method हमने पढ़े हैं. Contraceptive methods can be either natural or hormonal, can be intrauterine devices, can be barrier methods, can be surgical methods. Okay. Out of these, the traditional way is natural, which has least side effects but high failure rate. But high failure. Among natural methods, one is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea का क्या मतलब है बेटा? After childbirth, when the mother is feeding her baby, the hormone which is responsible for the synthesis of milk is lactogen or prolactin. Okay, and prolactin inhibits LH and FSH, which are ovary, which are pituitary gonadotropins responsible for the fertile cycle of the female. Okay. So when these will be inhibited due to the secretion of prolactin, no ovarian follicles will develop and hence no fertilization and hence no childbirth. So this is a natural method. Coitus interruptus, it means when the male generally uh, generally pertains or generally takes out his penis from the vagina of her partner just before ejaculation. This is also a natural method, but it has high failure rate because the pre-ejaculation fluid also contains sperms. Periodic abstinence during the fertile phase of female, generally for a 28-day cycle, it is advised to the couples that they do not indulge in sexual intercourse during the 10th to 17th day of menstrual cycle. Okay. But waltz is a barrier method. Waltz is a barrier method and not a natural or traditional method of contraception. So the answer being waltz. Okay. Moving on to the next question. This is a question from neural control and coordination chapter where they are asking about the different functions of different parts of brain. So first is pons. Pons thoroughly is a part of hindbrain which is rhombencephalon. It helps in connecting the different regions of the brain. Hypothalamus, apart from its thermoregulatory center activity, satiety center, appetite center, thirst center, it also has neurosecretory cells which secrete neurohormones like vasopressin and oxytocin, which are released from the posterior pituitary gland. So hypothalamus has neurosecretory cells. Medulla, it has centers which control respiration and gastric secretions. Respiratory rhythm center is present in the medulla oblongata part of hindbrain. Cerebellum, which is responsible for the posture movements, okay, and balance movements, is a part of hindbrain and known as little tree of life. So which option matches? A3, B4. Only one option. Very easy question. Moving on to next. Given below are two statements. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Statement 1, true. Hymen क्योंकि एक्सरसाइज स्टीनस एक्सरसाइज के दौरान भी ब्रेक हो सकता है फीमेल्स में, so it is not a reliable indicator. If in a female it has broken during like regular exercising or cycling activities, then we cannot say that female has indulged in a sexual intercourse just by looking at the hymen. So yes, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. This is a correct statement. Second statement, the hymen is torn during the first coitus only. As I told you just a second before, that it can be torn during exercise and other active physical activities like cycling, etc.
etc. So statement 1 is true, but statement 2 is false. So this is the correct answer. Moving on to the next question. So again, a matching type question talking about different parts of cells and their functions or associated areas. Let's see. Crista. We know crista are enfoldings present in the inner membrane of mitochondria where F0, F1 particles are present, which helps in the synthesis of ATP. Let's look for just one option. C4. Only in one option. B is correct. This was such an easy question that if you don't even know exoneme, cartwheel pattern, or satellite is a secondary constriction present in chromosome. So A2, B1, C4, D3. Correct. This was a question from cell cycle and cell division chapter. Again, very easy question from human health and disease chapter. Typhoid positive agent bacteria, Salmonella typhi. Leishmaniasis caused by a protozoan. Leishmania. Donovani. Ringworm, fungus, filariasis, nematode. So A4, B3, again, only a single option. Very easy question. Let's move on to the next question. Given below are two statements. Okay, first statement, let's read. In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. Okay, correct? Because when the fluid moves from the descending limb, the urine gets concentrated. The urine gets concentrated from an osmolarity of 300 milliosmol to 1200 milliosmol when it reaches the bottom of loop of Henle. So yes, because it is impermeable to water but permeable to electrolytes. Okay, is this statement correct? Is this statement correct? Is it impermeable to water or permeable to water? It is permeable to water. So statement 1 is also false. Let's look at statement 2. PCT is lined by simple columnar brush border epithelium. First, what is brush border epithelium? Cells having microvilli to increase the surface area of absorption. But there is a catch in this question. Is it simple cuboidal or simple columnar? It is simple cuboidal. It is brush border cuboidal epithelium in PCT and not brush border columnar epithelium. So again, this statement is also false. So both statements A and B are false. Okay. Let's move on to next question. This was a good tricky question where you had to catch even a single word like this. In statement 2, it is written columnar and the actual statement is PCT is lined by brush border simple cuboidal epithelium. Okay. Moving on to a question coming from biotechnology chapter. Alpha-1 antitrypsin, very easy. It is a recombinant protein used in the treatment of emphysema. Okay. Enzyme replacement therapy. First therapy as enzyme replacement therapy was done for adenosine deaminase. Okay. So let's look as an option. A3 है किसी में? इसमें है. D4 है, एक ही में है. हो गया. Easy question. जस्ट सब एनसीईआरटी से आया यार. एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं था इस बार. अच्छे से पढ़ लो, पूरा एनसीईआरटी से पेपर बन जाएगा. फिर आ गया नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. लिपेज लूप विच इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 375. कॉपर क्या करता है? कॉपर फैगोसाइटोसिस करता है स्पर्म्स की. डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी and makes that area of sperm hostile for sperm hostile. Hormone releasing IUD, levonorgestrel 20,
implants progestogen. So let's see an option A3, B1, okay, C4. This is the correct answer. Moving on to next question. Consider the statements following. Annelids are true coelomates, correct. Their body cavity is completely lined by mesoderm. That is why eucoelomate or coelomate animals. Poriferans are pseudocoelomates. No, poriferans are acoelomates. They are diploblastic animals. Since diploblastic, mesoderm absent. Aschelminths, acoelomates, wrong. Aschelminths are pseudocoelomates. Platyhelminths, pseudocoelomates, wrong. Platyhelminths being triploblastic since they are acoelomates because उनमें body cavity ही नहीं बचती. Their body cavity is filled with a tissue known as parenchyma. So ये गलत, ये गलत, ये गलत. Choose the correct answer. A only. So this is the correct answer. Moving on to next question. This was a very easy question from Animal Kingdom chapter where they asked on the basic general character. Okay. Moving on to next. Question from genetics. Down syndrome, 24th chromosome trisomy, very easy. बहुत पढ़ते हैं इसको तो एनसीईआरटी में. Klinefelter syndrome associated with X chromosome, XXY condition. Alpha thalassemia, 16th chromosome. Beta thalassemia, 11th chromosome. All genetic disorders. So let's match an option. A3, B4. Only a single option which is having such options. Moving on to next question. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार, ढंग से हो जाएगा अगर एनसीईआरटी तमीज से पढ़ोगे तो. अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 15 क्वेश्चन देख चुके हैं. 15-16 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से अभी तक बाहर का नहीं आया. Stages of pathway conduction of action potential in heart. अरे वाह, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन. एसए नोड पेसमेकर जहां से इंपल्स निकलेगी, पहला. फिर एवी नोड तक पहुंचेगी, बेस ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है. फिर एवी नोड से एवी बंडल लेकर जाएंगे वो इंपल्स को. फिर वो बंडल्स पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फैलेंगे ऐसे, ठीक है, और वो फिर वेंट्रिकुलर वॉल में फैलेंगे थ्रू पर्किंजे फाइबर्स. ओके, सो इट इज ई सी ए. ई सी ए वाला ऑप्शन है कोई, ये रहा ई सी ए डी बी. इजी क्वेश्चन, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन था. इजी है, एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंजाइम पूछी और एंजाइम का एक्शन पूछा है, कहाँ कहाँ होता है. देखो जी, एक एक एंजाइम लेके चलते हैं. लिपिड कैसे बनते हैं जी? लिपिड बनते हैं, लिपिड में होता है तुम्हारा ग्लिसरॉल या कोई भी अल्कोहल, है ना. जब वो एस्टेरिफाई करता है तुम्हारे ये देखो, और ये एस्टर बॉन्ड बनता है तो लाइपेज कौन सी है? लाइपेज यही बॉन्ड को तोड़ती है. तो लाइपेज एस्टर बॉन्ड, प्रोटीज पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ती है जो CONH होता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में. न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगी जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होगा बिटवीन 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH. अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेगी, ठीक है ना, जो दो शुगर मोनोसेकेराइड शुगर्स के बीच में होगा. तो A2B4 एक ही ऑप्शन है. सॉरी,
हेलो. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे वाह, PBR 322, द मोस्ट स्टडीड वेक्टर प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिगुez 322. उसका स्ट्रक्चर भूल लिया. और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से कि इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है. एक्स और वाई दे रखा है. एक्स क्या है यार? एक्स ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. वाई क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ROP है. ओरी क्या करता है? ओरी इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन, कॉपी नंबर कंट्रोल करता है, ठीक है ना, लिंक DNA का जो भी इंसर्ट डाला है. और ROP क्या करेगा? प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा. तो कोई ऐसा ऑप्शन है? पहला पढ़ते हैं. जीन एक्सिस फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन एंड वाई फॉर रेजिस्टेंस. नहीं, गलत. जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट. नहीं, रिकॉग्निशन साइट वाले ये होते हैं. ये भी गलत. जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. नहीं. जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. ये करेक्ट है भाई. आगे एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लेना ढंग से. एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दे रखी है जब तुम्हें ओरी पढ़ाया हुआ है और ROP पढ़ाया हुआ है. TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इसको. इट इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स, क्योंकि ये भाई इन्फेक्शन कॉज करते थे प्लांट्स में. सिंस दे हैव एबिलिटी टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स. तो इसमें जिस वजह से होता है वो प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड. और TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्योंकि ये क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करते हैं. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बकवास है, ट्यूमर इंडिपेंडेंट ये भी बकवास है, ट्यूमर इनहिबिटिंग ये भी बकवास है. ठीक है. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से मैचिंग क्वेश्चन आ गया. एनिमल किंगडम वेरी इजी. प्लूरोब्रेकिया. प्लूरोब्रेकिया हमें पता है टीनोफोरा मेंबर, टीनोफोरा फाइलम का मेंबर है. रेड्यूला रास्पिंग ऑर्गन है, मोलस्क में होता है. स्टोमोकॉड हेमिकॉर्डेट्स में होती है. और एयर ब्लैडर, जिस वजह से बोनी फिशेस को रेगुलरली पानी में स्विम नहीं करना पड़ता, वो बाहर भी आ सकते हैं पानी से मोमेंटेरली बिकॉज ऑफ एयर ब्लैडर, वो ऑस्टिक्टाइज बोनी फिशेस में होता है. तो आंसर चेक करते हैं. A2B1. A2B1 है, एक ऑप्शन में है, ये रहा. ठीक है, इजी क्वेश्चन. एनसीईआरटी भाई भर के एनसीईआरटी आई हुई है पूरी. मेरे को तो नहीं लगता एनसीईआरटी से कुछ बाहर आया भी है इस पेपर में. इनकरेक्ट जी, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है. बायोरिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर. नहीं भाई, लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल के लिए बायोरिएक्टर थोड़ी यूज करेंगे. तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई. फिर भी दूसरी और पढ़ लेते हैं. एजिटेटर सिस्टम होता है, हाँ जी होता है. ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है, एरेशन प्रोवाइड करने के लिए. फोम कंट्रोल भी होता है, इवनली मिक्स करने के लिए. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये भी ठीक है. मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर स्पार्जिंग नहीं, स्टीयरिंग टाइप होते हैं, ये भी ठीक है. तो आंसर इज ए. बायोटेक्नोलॉजी का इजी क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टॉपिक से है ये. फिर अरे वाह, इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे यार? 5 प्राइम 3 प्राइम, बस ATGC ATGC खेलना है इसमें. खेलते हैं चलो. 5 प्राइम स्टार्ट करते हैं. TACA. टी की जगह क्या आता है? ए की जगह RNA में क्या आता है? क्योंकि RNA डिपेंडेंट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, मतलब हमें mRNA बनाना है. तो RNA में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है. तो ए की जगह क्या आता है? यू. ठीक है. फिर आ गया सी की जगह जी, फिर ए की जगह यू, फिर टी की जगह ए, फिर जी की जगह जी, फिर 3 बार ए है मतलब 3 बार यू. ठीक है. फिर टी है तो AUA. ओके. फिर CC है मतलब GG. ओके. फिर AT है मतलब UA. फिर TC है मतलब AG. तो ये सीक्वेंस बना, चेक करो. AUG, UACC, GUU, AUA, GGU,
AAGU ये है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए A पेयर्स विद U, G पेयर्स विद C। दिस इज चार्ज ऑफ रूल का बेसिक क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू अनदर मैचिंग क्वेश्चन। अरे वाह, ड्रग्स का क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो सोर्सेज पूछ रहा है, कोकेन कोका अल्कलॉइड है प्रोड्यूसिंग फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। हीरोइन, हीरोइन क्या है भाई, हीरोइन को यूज करते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं बताओ। मॉर्फिन, मॉर्फिन इफेक्टिव सिडेटिव है सर्जरी में। हीरोइन ओपियम, ओपिएट नारकोटिक है। हीरोइन इज ओपिएट नारकोटिक। तो पॉपी प्लांट से आता है, पेपेवर सोमनिफेरम। कोकेन कोका अल्कलॉइड है। फिर मैरिजुआना कैनाबिनॉइड है, कमिंग फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, जिससे हशीश चरस गांजा सब आता है, उन्हीं की फॉर्म को मैरिजुआना बोलते हैं। सो A3B4C1, A3B4 एक ही ऑप्शन है यार, A3 वाला। इजी क्वेश्चन अगेन, एनसीईआरटी, कितना फोकस कर लो भाई। 23-24 क्वेश्चन हो गए, एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया अब तक। अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू से मैच करनी है। प्रोफेज वन के फेज दे रखे हैं मियोसिस वन में। Meiosis one में प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इनटू अगेन सब फेजेस लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ओके, तो लेप्टोटीन में क्या होता है भाई, पहले क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं थिन थ्रेड्स की तरह, सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। जाइगोटीन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैचिटीन रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखते हैं, और डायाकाइनेसिस की आस्माटा फॉर्मेशन खत्म हो रही होती है। ओके, तो देखो A2, एक ही ऑप्शन है भाई, A2B4C1D3। इजी क्वेश्चन, सेल साइकिल सेल डिवीजन से, एनसीईआरटी बेस्ड। कॉकरोच पे क्वेश्चन आ गया। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर एनल सरसाई 10 सेगमेंट में होते हैं। रटा रटाया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनल स्टाइल का फर्क होता है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है, क्योंकि वो सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है और फीमेल में नहीं होता। बट एनल सरसाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में मिलेगा तुम्हें एनल सरसाई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट assertion रीजन क्वेश्चन आ गया। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर बीइंग। सही बात है भाई। क्यों सही बात है, क्योंकि जो कोलोस्ट्रम होता है इनिशियल मिल्क, इट हैज आईजीए एंटीबॉडीज जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम करती हैं बेबी को। इट हेल्प्स इन नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइडिंग आईजीए एंटीबॉडीज, क्योंकि भाई जब पैदा हो रहे हैं, जब पैदा हो रहे हैं तो पैदा होते ही एंटीबॉडीज तो नहीं मिल रही, मतलब पैदा होते ही हमें इन्फेक्शन होने का डर है, तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन हमें इनहेरेंटली आती है अपनी मदर से, जिनके मिल्क में, कोलोस्ट्रम में जो फर्स्ट इनिशियल मिल्क होता है उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं। तो रीजन पढ़ते हैं, कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। करेक्ट, और सही में रीजन भी है इसका। सो ए इज करेक्ट, R is also correct, and R is the correct explanation of A. This is the answer. Very easy question coming from human health and disease. Now moving on to फिर एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आ गया। फिर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन। एक्सोफीटस फ्लाइंग फिश होती है यार, पता है। टेरोफाइलम एंजल फिश होती है। मिक्सिन हैग फिश होती है। प्रिस्टिस सॉ फिश होती है। ठीक है, देखो A3 ये दो ऑप्शन बचे, B1 ये, ठीक है ना, C2D4। इजी क्वेश्चन एनिमल किंगडम का, बस एनसीईआरटी याद रखनी थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये स्केलेटल मसल है, अनब्रांच दिख रहा है ना, स्ट्राइएशंस भी दिख रही हैं। ये स्मूथ मसल है, स्पिंडल शेप, टेपरिंग एंड्स, नो स्ट्राइएशंस, अनब्रांच्ड। ये ब्रांच है, देखो ये ब्रांचिंग दिख रही है ना, कार्डियक मसल है। तो स्केलेटल मसल बोन्स से जो मसल होते हैं अटैच्ड, ट्राइसेप्स। स्मूथ मसल विसरल ऑर्गन्स की वॉल में होते हैं, स्टमक। और कार्डियक मसल सिंस द नेम सजेस्ट हार्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बहुत, बेसिक क्वेश्चन, इमेज बेस्ड आया हुआ है।
नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या स्टीरॉयड हार्मोन है, कोर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन है, ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कौन बनाता है ये? सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैचिंग, बहुत सारे इस बार मैचिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। लोकोमोशन मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। जॉइंट पूछे हैं, फाइब्रस जॉइंट जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, हमारे स्कल में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हमारी व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज जो हमारी स्पाइन में होती है, वर्टिब्रा में, तो एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटेड मूवमेंट ही कर सकते हैं। हिंज जॉइंट जो हिंज की तरह मूव करेगा ऐसे, ये हिंज वाला जॉइंट कौन सा हुआ? एक तो ये वाला जॉइंट हुआ एल्बो जॉइंट, एक ये नी जॉइंट हुआ हमारा, ठीक है ना, जो एक ही तरफ मूवमेंट अलाउ कर रहा है। तुम गेट का हिंज देखते हो जिससे गेट अटैच्ड होता है, वो एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता है ना, इधर या इधर, इधर या इधर, ठीक है। तो हिंज जॉइंट, नी हेल्प इन लोकोमोशन। बॉल एंड सॉकेट जिसमें एक बोन बॉल की तरह हो और दूसरी बोन सॉकेट बनाए, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारा पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस का हेड बॉल की तरह होता है और असीटाबुलम कैविटी होती है, ठीक है ना। फिर पेल्विक गर्डल वाला हेड ऑफ फीमर। तो ऑप्शन देखते हैं, A3, एक ही ऑप्शन है भाई, इस बार तो कोई ऑप्शन भी क्लोज नहीं जा रही है। जूलॉजी में तो बहुत आराम से तुम फुल मार्क्स ला सकते थे। फिर FSH, फिर एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। FSH एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। नहीं भाई, मेल में लेडिक सेल्स पे नहीं करता, मेल पे तो सर्टोली सेल्स में करता है। तो एजर्शन ही गलत हो गया भाई, एक ही ऑप्शन है जिसमें एजर्शन गलत होता है, ये स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगली वाली। एजर्शन गलत हो गया, बट रीजन पढ़ लेते हैं कि रीजन ट्रू है कि नहीं। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन, हाँ, ग्रैन्युलोसा सेल्स इन फीमेल, वाइल इंटरस्टिशियल सेल, हाँ, ICSH या लेडिक सेल्स मेल में एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन इज ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। इजी क्वेश्चन। फिर यार लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है लगातार, मेरे को लगता है दूसरा क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इजी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जितनी लंग्स में बच जाए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट लंग कैपेसिटी होती है जो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं मेजर करने के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो ये पूछता है ना, कितनी सांस तुम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, विच इज वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इजी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो A2 B4, A2 B4 एक ही ऑप्शन है यार, ये रहा। इजी क्वेश्चन, NCERT बेस्ड। अरे वाह, सेल साइकिल इंटरफेस पूछ रहा है यार, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस, एम फेज। इंटरफेज में क्या आता है, पहले आता है G1 गैप 1 फेज, फिर आता है सिंथेसिस फेज जिसमें DNA रेप्लिकेशन होती है, फिर आता है G2 फेज। G2 के बाद पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कार्योकाइनेसिस, जिसमें एम फेज होता है, एंड लास्ट इज साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन। ओके, तो G1 है, G2 कैरियोकाइनेसिस, तो G1 क्या है, ई, फिर सिंथेसिस फेज C, G2 इज ए, डी, बी, EC है, DB, ये रहा। इजी क्वेश्चन सेल साइकिल से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात कर रहे हैं यार, तो ऑटो इम्यून डिजीज में बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? गाउट नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज, नॉर्मल डिसीज है जिसमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन होती है जॉइंट्स पे। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जेनेटिक डिजीज है बट ऑटो इम्यून नहीं है, डायस्ट्रोफिन जीन में डिफेक्ट होता है।
माइस्थीनिया ग्रेविस हाँ ऑटो इम्यून है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ऑटो एंटीबॉडीज बनती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, ऑटो एंटीबॉडीज बनती है साइनोवियल फ्लूइड के खिलाफ, साइनोवियल जॉइंट डैमेज कर देता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसीज। So A, B, and D. Is there any option? This is the option. Easy question coming from human health and disease. Which one is not a component? Fallopian tube. Fallopian tube में क्या होता है? Infundibulum, ampulla और isthmus. These are a parts of fallopian tube. Infundibulum हाँ जी होता है, ampulla हाँ जी होता है, uterine fundus नहीं, नाम में ही है यार, ये यूट्रस का पार्ट है। isthmus होता है, तो आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी बेस्ड। भाई देखो 3 चैप्टर ऐसे हैं पूरी जूलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुम्हारा एवोल्यूशन, और क्या कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये 3 चैप्टर है, हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर तुम्हारे पेपर में बना देते हैं, अगर इन 3 चैप्टर को तमीज से पढ़ लो। और वैसे बायो को तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम चैप्टर देख देख के पढ़ो कि ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना, बायो तो पूरी पढ़नी है। अगर आज की डेट में तुम्हें मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, तो बायो में भी तुम्हें 360 से 360 एम करना पड़ेगा। बायो में तुम 340-350 के नीचे नहीं सोच सकते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए, एंड चाइल्ड का ओ, मतलब मदर फादर हेट्रोजाइगस है, सीधी सी बात है। क्या कहते हैं, फादर का बी, तो आई बी आई ओ, स्मॉल आई भी लिख सकते हो आई ओ को, ठीक है ना। मदर का है आई ए आई ओ, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है जो पुनेट स्क्वायर, देखो पुनेट स्क्वायर बनाऊं अगर मैं, आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, ठीक है। अगर मैं पुनेट स्क्वायर बनाऊं तो आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई ए आई, आई बी आई ओ, और आई ओ आई ओ, ये आ गया ना, ठीक है। सो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, फादर का आई आई बी, ठीक है ना, फिर ये भी हो सकती है, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आंसर है आई बी आई आई, आई ए आई ओ, और आई ओ आई ओ, तो आंसर इज ए। ये हो सकती है नहीं, होमोजाइगस में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते पेरेंट। नहीं, चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें भी चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ भी गलत, ये तो ए बी वाला बन गया। तो आंसर इज ए ओनली। इजी क्वेश्चन, गारंटी। ये तो मैच वो वाले क्वेश्चन आ गए, क्या कहते हैं, जिनमें से तुम्हें 15 में से सिर्फ 10 करने हैं, तो अगर नहीं भी आता तो छोड़ सकते थे, कहीं और 10 क्वेश्चन देख सकते थे। फिर मैचिंग, भाई साहब मैचिंग ही भर रखी है इस पेपर में। एंडोक्राइन डिसीजेस पूछे हुए हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हाइपरथायरॉयडिज्म को बोलते हैं, ओके। हाइपरथायरॉयडिज्म को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। एक्स मतलब आउटसाइड ऑफ थैल्मिया, मतलब आई, आई बॉल की प्रोट्रूड करना, बाहर निकलना, जिनकी आंखें बाहर निकली होती हैं, गला पूरा स्वेल हो रहा होता है, गोइटर होता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्रोमिगाली यार ग्रेट कली वाला केस है, एक्रोमिगाली मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज। तो इसका क्या होगा, जिस वजह से जो एक्रल पार्ट्स हैं, मतलब हैंड और फीट, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी। तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ए, बी, फोर। कोई और ऑप्शन है? ये दो है, अभी भी आगे पढ़ना पड़ेगा। कशिंग सिंड्रोम, एड्रीनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिसोल का हाइपर सिक्रीशन को बोलते हैं एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस, हाइपरग्लाइसीमिया।
क्रेटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। ठीक है ना, इन चिल्ड्रन, hypothyroidism in children will lead to stunted growth, bronze pigmentation, stunted growth, bronze pigmentation, low IQ, मतलब low intelligence quotient, ठीक है ना। It occurs all due to hyposecretion of thyroid hormone. तो A3 B4 C1 D2, this is the correct answer. Moving on to next question. हाँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया। मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा यार, इसमें जुरासिक पीरियड आता है अगर याद हो तो, ठीक है ना। ओके, तो मीजोजोइक एरा इज फॉर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, A3। प्रोटेरोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा तो यार क्या कहते हैं, बताओ। मीजोजोइक एरा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, पैलियोजोइक एरा सबसे पीछे वाला होता है, ठीक है ना। पैलियोजोइक एरा क्या होता है, सबसे पीछे वाला। प्रोटेरोजोइक एरा लोअर इनवर्टिब्रेट्स, कीनोजोइक एरा फिश एंड एम्फीबिया के लिए होता है, और पैलियोजोइक एरा मैमल्स के लिए होता है। तो देखें, A3 B1 है, और C2 D4, ये रहा। इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। किसके करेक्टर बताने हैं, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब इनवर्टिब्रेट करेक्टर्स बताने हैं एनिमल किंगडम का। फिर जनरल करेक्टर पे क्वेश्चन। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय ग्रिल स्लिट्स, नहीं कॉर्डेट करेक्टर है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं वेंट्रल होता है, और डबल होती है नर्व कॉर्ड, तो ये भी क्या कहते हैं, कॉर्डेट करेक्टर है। डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनवर्टिब्रेट्स में वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, करेक्ट है, हार्ट डॉर्सल होता है इनवर्टिब्रेट्स में, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो आंसर इज B D and E। है कोई ऑप्शन, ये रहा B D and E। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है यार, बैंड ऑफ नर्व्स होती हैं जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करती हैं। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, नहीं भाई सेरिब्रम तो नहीं होता। ब्रेन स्टेम में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। तो स्टेटमेंट 2 तो हो गई जी फॉल्स। इजी क्वेश्चन था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो ये तो हो गई फॉल्स। तो मतलब 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। तो दिस इज द। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब ग्लैंड है और एक ही सेल है। गॉबलेट सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग, है ना, म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट इन डुओडेनम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगा यार, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी। फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है। और कहाँ मिलता है कंपाउंड एपिथेलियम, स्किन में मिलता है। मल्टीसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड्स, मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स है ना, पेरोटिड, तीन तीन लोकेशन होती है, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सलाइवरी ग्लैंड। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन भी है। पैनक्रियास, हार्मोन सिक्रीट करता है ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो आंसर इज A3 B4, है कोई एक ही ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अगेन, मैचिंग टाइप, पी वेव, ECG, PQRS T, यही होता है नॉर्मल ECG। पी वेव
प्रीसीड्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल सिस्टोल से पहले होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव रीपोलराइजेशन जॉइंट डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और टीपी गैप। अगर ये टीपी गैप इसके बाद पी बहुत लेट आया तो मतलब हार्ट मसल्स इलेक्ट्रिकली साइलेंट है, वो दोबारा इंपल्स जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो A3B2 एक ही ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलेशन चैप्टर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है भाई, दोनों में दो दो मेम्ब्रेन होती हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमन सेल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस परमिएबल, नहीं, ज्यादा होती है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। दिस मूविंग ऑन, सेल सेल चैप्टर से क्वेश्चन था, इजी था, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उनमें भी एनसीईआरटी बेस्ड है। कॉकरोच से फिर कॉकरोच की एनाटॉमी पे क्वेश्चन आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में कौन सा पार्ट स्टोरिंग ऑफ फूड, क्रॉप, एक्सेसरी चैम्बर होता है कॉकरोचेस में। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स गैस्ट्रिक सीके, क्यों, फॉर रिलीज ऑफ गैस डाइजेस्टिव जूस, जिनमें एंजाइम्स होंगी। फिर रिंग ऑफ 100 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट जंक्शन मिडगट हाइंडगट, मालफिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन एंड ग्राइंडिंग फूड गिजार्ड। तो आंसर इज A4B2C3, A4B2C3 D1, ये रहा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फिर मैचिंग आरएनए पॉल 3 टीआरएनए ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर, एक्सॉन स्प्लाइसिंग स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेजेस, टाटा बॉक्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स में बाय प्रमोटर, ये रहा। प्रमोटर में होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिसको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड करती है वहां पर बैठ के। तो फिर A4B3 है, ये रहा, सिंगल ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएनआरएच भाई हाइपोथैलेमस जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी LH FSH, LH will go on to Leydig cells, Leydig cell will secrete androgen and promote formation of spermatid। ठीक है, FSH सर्टोली सेल, ये मेल स्पर्मेटोजेनेसिस का एंडोक्राइन कंट्रोल है। सर्टोली सेल विल सिक्रीट, तुम्हारा क्या सिक्रीट करेंगे सर्टोली सेल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर सिक्रीट करेंगे विच विल कॉज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड के हेड विल एम्बेड इनटू सर्टोली सेल्स एंड डेवलप इनटू फंक्शनल स्पर्म्स। सो ए ये है, तो A इज FSH, B इज ये Leydig cells, C is Sertoli cells and D is spermiogenesis। तो FSH, Leydig cell, Sertoli cells, spermiogenesis, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग्जैक्ट डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। लूप ऑफ हेनले जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का क्वेश्चन आ गया। लूप ऑफ हेनले जुक्स्टामेडुलरी डीप रन इनटू मेड्यूला, ठीक है, आउट नंबर नहीं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं, जुक्स्टामेडुलरी तो जस्ट 15% होते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी नहीं, मेडुलरी नेफ्रॉन आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेड्यूला नहीं, तो आंसर इज ए। एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे एनसीईआरटी में चारों लाइन की करेक्ट फॉर्म दे रखी है, पढ़ लेना एक बार। इकोलॉजी का क्वेश्चन, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम इंटरैक्शंस पढ़ते हैं लास्ट में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में, कमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। तो कंपटीशन में दे रहे प्रिंसिपल कम्स नोन एज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स that there will be intraspecific competition between the members of same species
for the same resources. Okay, now let's read. Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different, no, गलत हो गया यार, same resources कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, सही बात है, इंडेफिनेटली तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बट सेम रिसोर्स जब फाइट कर रहे होंगे. ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. ये सही है भाई, वीक तो रिमूव हो ही जाएगा, तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, तो बी ऑप्शन. मूविंग ऑन. बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स. हाँ जी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और हिमाटोपोइसिस होती है यहाँ पर, सारे ब्लड सेल और ब्लड सेल के प्रिकर्सर बनते हैं. बोथ बोन मैरो थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. सही है. टी लिम्फोसाइट का एक चीज ध्यान रखनी है, ये बनते बोन मैरो में है बट इनकी डिफरेंशिएशन मैचुरेशन थाइमस बोन मैरो दोनों में. सिंपल. तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट. ये रहा. मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. अगेन एंजाइम सबस्ट्रेट का क्वेश्चन है. पहला ई सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एंजाइम एक्टिव साइट. ठीक है, पहला. इससे क्या होगा, तुम्हारे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे केमिकल बॉन्ड टूटेंगे सबस्ट्रेट के, प्रोडक्ट बनेगा और फिर ये अनदर एंजाइम को बाइंड करेगी. तो ई ए डी, ई ए डी सी बी, ई ए डी सी बी, ये रहा करेक्ट आंसर. तो यार देखा, पेपर 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, आराम से फुल मार्क्स भी आ सकते थे. तो अब इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा, जो लोग अगले साल नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, भाई एनसीईआरटी की किताब बाइबल है. चार्ट जाओ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, तुम्हें कोई 2 बजे भी सुबह के उठा दे और नींद में उठाकर थप्पड़ मार के पूछे क्या ये कहाँ लिखा था एनसीईआरटी में, कहाँ पर ये डायग्राम है, उस डायग्राम के एरो की कितनी लेंथ है, ये बड़ा एरो है छोटा एरो है, कितनी डिटेलिंग, तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी एक टू वर्ड डिटेल पता होनी चाहिए, तभी तुम इस एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो. और नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए यू नीड टू बी मोर हार्ड वर्किंग देन आईक्यू इंटेलिजेंट. इफ यू हैव दैट्स अ गुड ट्रेड. नहीं भी है तो अगर मेहनत करोगे तो एमबीबीएस की सीट ले सकते हो गवर्नमेंट की, क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम 50% पेपर बनाता है वो पूरा साल दर साल पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा. तो इसको पढ़ो ढंग से, तमीज से एनसीईआरटी पढ़ो. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट अपेयरिंग फॉर future years in NEET and aspiring to become a doctor. Good evening.